Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 27 of the course Data Structures. My dear students, I hope that you are feeling confident in programming skills and you must be enjoying the course by this time. We will start our today's lecture with the summary of the last lecture. In the last lecture, we started with the brief concepts of the revisited the concepts of the complete binary tree. A complete binary tree is a tree that is completely filled with the possible exception of the bottom level. The bottom level is filled from left to right. A complete binary tree of height h has between 2 power h to 2 power h plus 1 minus 1 nodes. The height of such a tree is thus log of n to the base 2, where n is the number of nodes in a tree. Because the tree is so regular, it can be stored in an array and no pointers are necessary. For language where array indexing starts from 1, and for any array element at position I, the left child will be at the position 2i and the right child will be at position 2i plus 1, and the parent of the node I will be at I over 2. In case for languages where start of the array is from index 0, then for any node I, the left child will be at 2i plus 1 and the right child will be at 2i plus 2, and the parent of the node will be at I minus 1 divided by 2. Then we talk about the heaps. That's our main topic. Heaps are the application of almost completely complete binary tree, where all levels are full except the last one, which is left filled. A heap is a specialized tree-based data structure that will satisfy two properties. The one is that if A is the parent node of B, then key of A is ordered with respect of key of B, with the same ordering applying across the heap. Either the key of the parent nodes, they are always greater than or they are always less than the key values of their children, and the highest key is in the root node. And this kind of heap will be called a max heap. Or the keys of the parent nodes are less than that of the child nodes. This will be in the case of it will call min heap. Then we talk about the min heap and max heap. A min heap is an almost complete binary tree where every node holds the data value or key, and the key of every node is less than or equal to the keys of the children. A max heap has the same definition except that the key of every node is greater than or equal to the keys of the children. And there is no implied ordering between the siblings or the cousins, and no implied sequence for an in-order traversal, as there would have been in the case of a binary search tree. The heap relation mentioned applies only between the nodes and their immediate parents. And then we define that if a heap T storing n keys has a height h, then it will have log of n plus 1, which is big order to the traversing will be at big order to log of n. Then we talk about the heap operations. The common heap operations with the create heap means where you can create an empty heap. A variation of a create heap will be where you create a heap out of a given array of elements. You can have find min or find max, finding the maximum item of a max heap or a minimum item of a min heap respectively. You can have a delete and insert operation, increase key or decrease key, where updating a key within a max or min heap respectively. And the final will be a merging of two heaps, where you joining two heaps to form a valid new heap containing all the elements of both the heaps. Then we especially talk about the heap insertion and heap deletion because they are a bit different from the other operations. To add an element to a heap, we must perform an up heap operation, also known as bubble up, perlocate up, sift up, trickle up, heapify up, or cascade up. These are the different names for the up heap operation by following the algorithm. The algorithm was that first of all you have to add the element at the bottom level of the heap, means at the last node. Then you have to compare the added element with its parent. If they are in correct order, then you have to stop. It means that if it is if in the case of a min heap,
if it is the value of child is greater than its parent, then we have to swap the element with its parents and return to the previous step, and we have to repeatedly swap x with its parents until either x reaches the root or x become greater than its parents, means min heap, or x is less than equals to parents max heap. The number of operations required is dependent on the number of levels the new element must rise to satisfy this heap property. Thus, the insertion operation has a time complexity of big O to the order of log n. Then we talk about the heap deletion. The procedure for deleting the root from the heap, effectively extracting the maximum element in a max heap or the minimum element in the min heap, and restoring the properties, is called the down heap, also known as bubble down, perlocate down, sift down, trickle down, heapify down, cascade down, and extract min or max. The algorithm is you have to replace the root of the heap with the last element on the last level. Then you have to compare the new root with its children. If they are in correct order, you have to stop. Otherwise, you have to swap the element with one of its children and return to the previous step. The swapping with its smaller child in a min heap and its larger child in a max heap. The number of operations required is dependent on the number of levels the new element must go down to satisfy the heap property. Thus, the deletion operation has a time complexity of big O to the order of log n, that is the height of the heap. Then we also talk about the time complexities of the heap operations. Find min, delete min, insert and decrease key. They have the finding min is constant, big O to the order of 1. Delete, min, insert and decrease key, they have the time complexity of big O to the order of log n, and merging will depend on the number of nodes, so it will be big O to the order of n. Then we talk about the applications of heap. A priority queue with min heaps that orders entities not on a first come first served basis but on a priority basis. The item of highest priority is at the head and the item of the lowest priority is at the tail. Heap sort, one of the best sorting methods being in place and with no quadratic worst case scenarios, is also an application of heap. Selection algorithms finding the min max, both the min and max, median, or even the kth largest element can be done in linear time, often constant time, using the heaps. Graph algorithms, by using heaps as internal traversal data structures, runtime will be reduced by the polynomial order. These are some of the applications of heaps. Then we talk about the priority queue, which is an abstract data type which is like a regular queue or stack data structure, but where additionally each element has a priority associated with it. In a priority queue, an element with high priority is served before an element with the low priority. If two elements have the same priority, they are served according to their order in the queue. It is a common misconception that a priority queue is a heap, which is not the case. A priority queue is an abstract concept like a list or a map. Just as a list can be implemented with a linked list or an array, priority queues can also be implemented with a heap or a variety of other methods. Priority queues must at least support the following operations, means insert with priority, pull the highest priority element, get the maximum element, get the front, means most element, peek at the highest priority element, looking into the priority queue and peeking at which element in the queue has the highest priority. We can delete the element, pull the highest priority element, pull the lowest priority element, and peeking and clearing the queue. They are all common operations. When we compare priority queues, where they have some similarities with the queues, one can imagine a priority queue as a modified queue, but when one would get the next element of the queue, the highest priority element is retrieved first. Stacks and queues may be modeled as particular kinds of priority queue. In a stack, which is last in first out, the priority of each inserted element is monotonically increasing. Thus, the last element inserted is always the first retrieved. In a queue which is first in first out, the priority of each inserted element is monotonically decreasing. Thus, the first element inserted is always the first retrieved.
We also seen the priority queue implementation as a heap. To improve the performance, priority queues typically use a heap as their backbone, giving big O to the order of log n performance for inserts and removals, and big O to the order of n to build the heap initially. Binary heaps using big O to the order of log n time for both operations, but also allow queries of the element of the highest priority without removing it in a constant time, big O to the order of 1. Semantics of priority queue is naturally just a sorting method, inserts all the elements to be sorted into a priority queue and sequentially remove them. They will come out in sorted order. We can implement heap sort if the priority queue is implemented with a heap. We can do it as a selection sort if the priority queue is implemented with an unordered array. And we can do it as an insertion sort if the priority queue is implemented with an ordered array. Then the last topic of our lecture was the heap sort. Heap sort is a comparison-based sorting algorithm to create a sorted array or list. It is part of the selection sort family, and it is an in-place algorithm, but it is not a stable sort. Although somewhat slower in practice on most machines than a well-implemented quicksort, it has the advantage of a more favorable worst-case big O to the order of n log n runtime. And the heap sort is basically a two-step process. In the first process, we will build a heap out of data from an array. And in the step 2, we begin with removing the largest element from the heap. We insert the removed element into the sorted array. And for the first element, this would be the position 0 of the array. Next, we reconstruct the heap and remove the next largest item and insert it into the array. And after we have removed all the objects from the heap, we have a sorted array. We can vary the direction of the sorted elements by choosing a min heap or max heap in step 1. Heap sort can be performed in place. The array can be split into two parts, the sorted array and the heap. The storage of heap as array is diagrammed starting from the subscript 0, and the heap invariant is preserved after each extraction, so that only the cost is that of the extraction. फिर हमने उस पर जो है वो heap sort का और जो है वो हमने heapify, shift up, shift down ये वाले functions भी देखे, algorithm देखा, उसका example trace आपको बहुत डिटेल से बताया, and I sincerely hope कि वो आपको समझ में आ गया होगा. फिर हमने इसकी complexity भी देखी. Complexity जो है burst case, best case, average case, worst case जो है वो big O to the order of n log n है, and the worst case space complexity total के केस में big O to the order of n है, जबकि auxiliary के केस में big O to the order of 1, which is a constant. फिर हमने heap sort को comparison किया था with quicksort and merge sort. The heap sort primarily competes with the quicksort, another very efficient general purpose nearly in place comparison method of the sorting algorithm. And quicksort is typically somewhat faster due to the better cache behavior and other factors, but the worst case running time for the quicksort is n square, which is unacceptable for large data sets and can be deliberately triggered even enough knowledge of the implementation, creating a security risk. So heap sort is often used in the embedded systems with real-time constraints of the system concerned with security because of its n log n runtime, upper bound on the heap sort's running time, and a constant big O to the order of 1 upper bound on its auxiliary storage. So that's why heap sort is quite preferred in the embedded systems. Heap sort also competes with the merge sort. Both have the runtime of big O to the order of n log n, upper bound on the running time, but merge sort requires big O to the order of n auxiliary storage, where heap sort requires only 1 constant. But heap sort is typically runs faster in practice on machines with small or slow data caches. But on the other hand, merge sort has several advantages over the heap sort. Merge sort is a stable sort, whereas heap is not a stable sort. Like quicksort, merge sort on arrays can have considerably better data cache performance, often outperforming the heap sort on modern desktop computers, because the merge sort frequently accesses contiguous memory locations, which is basically a good locality of reference,
Heap sort references are spread throughout the heap, so time complexion is there. Merge sort is used in external sorting, whereas heap sort is not. Locality of reference is the issue. And merge sort parallelizes well and can achieve closer to linear speedup with a trivial implementation. Heap sort is not an obvious candidate for a parallel algorithm. And in the end, merge sort can be adapted to operate on linked list with the big O to the order of 1 extra space. Heap sort can be adapted to operate on doubly linked list with only big O to the order of 1 links extra space overhead. So that was the summary of our last lecture, and I sincerely hope कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. मैंने आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेस देता रहता हूँ. काइंडली अपनी इसको करते रहिएगा ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल दिन ब दिन इंक्रीज करे एंड यू फील कॉन्फिडेंट इन प्रोग्रामिंग. अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज जो है वो हम थोड़ा सा बाइनरी ट्रीज की तरफ जाएंगे. वी विल रिविजिट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ट्रीज. और आज का जो हमारा स्पेशल एम्फेसिस होगा वो चंद स्पेशल टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज हैं. देयर आर मेनी टाइप्स बट वी विल फोकस ऑन द एक्सप्रेशन ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, AVL ट्री, रेड ब्लैक ट्रीज, स्प्लिट ट्रीज. और इसके हम ख़ास तौर पर इनके इंसर्शंस और डिलीशन ऑपरेशंस पे ज़रा मद्देनज़र रखेंगे और इनको हम इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी डिस्कस करेंगे और इन दी एंड बी ट्रीज के बारे में भी ज़रा बात की जाएगी. ट्री टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा मैं रिविजिट करता हूँ आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कि नोड की जो टर्म है इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी ट्री स्ट्रक्चर. इट स्टोर्स एक्चुअल डेटा एंड लिंक्स टू अदर नोड्स. Parent of the node is the immediate predecessor of a node, also called the non-terminal node or the internal node भी कहते हैं. Child क्या है? It is if the immediate predecessor of a node is a parent of the node, then all immediate successors of a node they are called child. Child on the left is called the left child, and child on the right is called the right child. Link is a pointer to a node in a tree. It is also called a branch or an edge. And root is a specially designated node which has no parent. So root का parent कोई नहीं होता, उसके सिर्फ child होते हैं. Leaf is a node which is at the end and does not have any child. Leaf का child कोई नहीं होता, उसका parent जरूर होता है. It is also called the terminal node और इसको external node भी कहते हैं. Level जो है basically is the rank in the hierarchy. A root node has level 0. If a node is at level L, then its child is at level L plus 1 and its parent is at level L minus 1. And this is true for all nodes except the root node. क्योंकि root node 0 पे होता है और उसका parent कोई नहीं होता. Height क्या है? The maximum number of nodes that is possible in a path starting from the root node to a leaf node is called the height of the tree. Which is also called, इसको depth भी कहते हैं. और height जो है वो I max plus 1 होती है, where H is the height and I max is the maximum level of the tree. Degree जो है is the maximum number of children that is possible for a node. So binary tree के जो nodes हैं उनकी maximum degree 2 हो सकती है. Siblings are the node which have the same parent. तो एक ही parent के जो left और right child हैं वो आपस में सिर्फ siblings कहलाएंगे. बाइनरी ट्री को हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने फोकस ज़्यादा बाइनरी ट्री पर करना है, उसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. बाइनरी ट्री की टर्मिनोलॉजी को रिविजिट करते हैं. अ ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड सच दैट देयर इज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड नोड व्हिच इज कॉल्ड द रूट. द रिमेनिंग नोड्स आर पार्टीशन्ड इनटू n where n is always greater than 0. Disjoint sets t1, t2, so on up till tn. And where each ti, where I can be 1, 2, 3 up till n, is a tree. T1, T2 up till Tn, they are called the subtree of the root. And binary tree is a special form of a tree. It is more important and frequently used in various applications of the computer science. It is defined as a finite set of nodes such that T is empty. We will call it an empty binary tree. T contains a specially designated node which we'll call the root of the T, and the remaining nodes of the T, they form the two disjoint binary tree T1 and T2,
which are called the left subtree and the right subtree. यानी कि किसी भी पेरेंट नोड के दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते. A tree can never be empty, but a binary tree may be empty. And a binary tree, a node may have at most 2 children. It means tree having degree equals 2. Full binary tree जो है, it contains the maximum possible number of nodes at all the levels, including जिसका जो आखिरी level होता है वो भी full होता है. जो complete binary tree है, if all of its levels except possibly the last level have the maximum number of possible nodes, and all the nodes in the last level they appear as far left as possible. और जो skew binary tree है, it is a tree where each level has only one node and each parent has exactly one child. Properties थोड़ा सा हम binary tree की revisit कर लेते हैं कि maximum number of nodes in any binary tree on level k will be equals to n is equals to 2 raised to power k, where k will always be greater than equals 0. तो आपका लेवल 0 पे चूंकि रूट नोड होता है तो k0 जो है 2 पावर k that will be 2 पावर 0 is 1. तो आप देखें कि at level 0 maximum number of node is 1. लेवल 1 पर आपके 2 चाइल्ड होंगे पेरेंट के रूट के, तो 2 raised to power अगर आप करेंगे 1 लेवल 1 पे तो आप करेंगे 2 नोड्स निकल आएंगे. Maximum number of nodes possible in a binary tree of height h, it will be equals to 2 raised to power h minus 1. Minimum number of nodes possible in a binary tree of height h, that will be n is equals to h, which will be a skew binary tree होगा जिसमें हर लेवल पर एक ही नोड होता है और वो एक एग्जैक्टली एक ही चाइल्ड होगा. For any non-empty binary tree, if n is the number of nodes and e is the number of edges, then the number of nodes will be equals to e minus 1. यानी कि हमेशा एक एज आपका ज़्यादा होगा. अगर आपके 8 नोड्स हैं तो एजेस जो हैं वो 7 होंगे. For any non-empty binary tree, if n naught is the number of leaf nodes, means degree 0, and n2 is the number of internal nodes, degree is equals to 2, then n naught equals to n2 plus 1. The height of a complete binary tree with n number of nodes is log of n plus 1 to the base 2. Types of binary tree आज हम देखेंगे. इसमें हम ज़्यादा बात करेंगे expression tree, binary search tree, heap tree, threaded binary tree, heighted balance tree जिसको AVL tree भी कहते हैं, red black trees and split tree. तो इनमें से हम आज वो बारी बारी देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेशन ट्री को. दिस इज द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री टू इवैल्यूएट सर्टेन एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशंस के लिए बनाया जाता है एंड इट्स बाइनरी ट्री विच स्टोर्स एन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, या आपका लॉजिकल ऑपरेशन को ये स्टोर करेगा. लीव्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर ऑपरेंट्स, ये हमेशा ऑपरेंट होंगे एंड सच एज कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल नेम्स भी हो सकते हैं. एंड ऑल इंटरनल नोड्स आर द ऑपरेटर्स. जो आपके इंटरनल नोड्स हैं, नॉन टर्मिनल नोड्स होंगे, वो हमेशा ऑपरेटर होंगे. An expression tree is always a binary tree because an arithmetic operation contains either binary operators or unary. किसी भी arithmetic expressions में या तो unary operators होते हैं या binary होते हैं. Hence an internal node has at most 2 children. तो इसमें जो एक्सप्रेशन ट्री के लिए जो 2 कॉमन एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन बी आइदर अरिथमेटिक और बूलियन. एक्सप्रेशन ट्री कैन रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स बोथ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. इट इज इम्प्लीमेंटेड एज बाइनरी ट्रीज मेनली बिकॉज बाइनरी ट्री अलाउ यू टू क्विकली फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अगर हम इस एक्सप्रेशन ट्री को देखें तो ये इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप इसमें ये देखें कि आपके लीफ जो नोड्स होते हैं वो हमेशा ऑपरेंट्स होंगे और जो ऑपरेटर है वो हमेशा नॉन टर्मिनल नोड्स पर होगा. जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो मल्टीप्लाई आपका पेरेंट होगा, 2 और 3 उसके चाइल्ड होंगे. 2 और 1 जो है ये ऑपरेंट्स हैं, माइनस विल बी द ऑपरेटर, और इन दोनों के जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली ऑपरेंट बनेगा और ये आपका ऑपरेटर हो जाएगा.
इसी तरह हम इस तरफ भी चलेंगे। ये आपको वैसे उस हवाले से भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वेरिएबल्स के अलावा आपके कांस्टेंट्स के अलावा वेरिएबल नेम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल नेम्स की मदद से एक हमने एक्सप्रेशन बताया। इसी तरह आपका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन वो होता है जिसका जो एंड रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसमें एंड या और है या नॉट भी होता है। नॉट आपका यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए एक ही ऑपरेंड होगा। एंड और में जो है वो आपके एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन जो है उसका इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन ट्री सामने है। आपने एक्सप्रेशन ट्री को बिल्ड करना है तो उसका एल्गोरिथम हम देख लेते हैं कि इनपुट इसमें क्या होगा कि हम एक एक्सप्रेशन ई ले रहे हैं विद द पोस्ट फिक्स नोटेशन अपेंडेड विद, इसमें हैश साइन हम डाल रहे हैं एज अ डिलिमिटर सिंबल, ताकि हमें मालूम हो जाए कि यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो गया। ये हम आर्बिट्रेरली ले रहे हैं, आप कोई भी एंड ऑफ फाइल मार्कर या कोई भी आप डिलिमिटर रख सकते हैं। हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि पोस्ट फिक्स नोटेशन के एंड पर जब ये आएगा इट मीन्स कि अब आपका एक्सप्रेशन खत्म हो गया। आउटपुट क्या होगी? एक्सप्रेशन ट्री करस्पॉन्डिंग टू द गिवन पोस्ट फिक्स नोटेशन, वो आउटपुट हो जाएगी। डेटा स्ट्रक्चर हम लिंक स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री इस्तेमाल करेंगे। पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर फॉर अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, मैंने आपको इसमें बताया हुआ है। गेट टोकन इसमें इस्तेमाल होगा एक फंक्शन which will scan the postfix notation and returns the current token one at a time and then control automatically shifts to the next token। ये हम assume ये करेंगे कि get token हमें एक टोकन दे देगा। अब वो जो टोकन मिलेगा या तो वो ऑपरेटर होगा या वो ऑपरेंड होगा। तो हम इसमें एल्गोरिथम में सबसे क्या करेंगे कि हम गेट टोकन से एक टोकन ले लेंगे और हम उसके बाद हम व्हाइल लूप लगा रहे हैं कि जब तक वो टोकन हैश के बराबर ना हो जाए we will keep on doing this operation। जैसे ही हैश होगा, ये डिलिमिटर ऑपरेशन है, तो वो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अगर आपका टोकन जो है वो ऑपरेंड है, इफ द टोकन इज एन एक्सप्रेशन, तो हम क्या करेंगे, एक नया गेट नोड मीन्स के एक नया नोड लेंगे हम गेट एंड उसको इनिशियलाइज करेंगे विद न्यू नोड और उसके डेटा में हम टोकन डाल देंगे और हम उसको पुश कर देंगे ऑन टू दी स्टैक। एल्स अगर वो ऑपरेंड नहीं ऑपरेटर है, तो अगर टोकन आपका ऑपरेटर है देन हम क्या करेंगे कि हम पॉप करेंगे और 2 दफ़ा पॉप करेंगे, क्योंकि अगर ये बाइनरी है तो 2 दफ़ा करेंगे, यूनरी है तो 1 दफ़ा करेंगे। न्यू नोड करेंगे, गेट न्यू नोड, और उसके डेटा जो है उसको उसमें हम टोकन डाल देंगे और उसके जो चाइल्ड है उसमें हम पॉइंटर 2 डाल देंगे और उसके राइट चाइल्ड में पॉइंटर 1, और उसको हम पुश कर देंगे न्यू नोड को, ये भी हम उसको पुश कर देंगे और उसके बाद और फिर हम एक गेट टोकन लेंगे और फिर हमारा ये व्हाइल लूप दोबारा चलता रहेगा। जब ये व्हाइल लूप ख़त्म होगा इट मीन्स आपकी एक्सप्रेशन आप ये देखेंगे कि वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एक्सप्रेशन ट्री। 2 कॉमन ऑपरेशंस हैं, यू कैन ट्रैवर्स द एक्सप्रेशन ट्री एंड यू कैन इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन ट्री। ट्रैवर्स ऑपरेशंस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सल की थी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। जो इवैल्यूएशन द एक्सप्रेशन ट्री है इज आल्सो वेरी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अगर आपको याद हो तो जब हम स्टैक्स कर रहे थे तो मैंने आपको उसमें एक्सप्रेशन का भी इवैल्यूएशन का बताया था स्टैक के हवाले से। तो वंस यू हैव एन एक्सप्रेशन ट्री तो उसकी इवैल्यूएशन भी जो है वो बहुत आसान है। Binary search tree is also an application of the binary trees है। Binary search tree को हम BST या ordered binary tree भी कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि all elements in the left subtree of a node are less than the contents of n, जो आपका यहाँ पे रूट कह लें या सब रूट जो भी है, and all elements in the right subtree of a node are greater than or equal to the contents of n। वो राइट वैल्यूज उससे बड़ी होती हैं और उससे छोटी हैं, ये ऑलरेडी आपका समझ लें काइंड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री सॉर्टेड होता। तो बाइनरी सर्च ट्री में कॉमन ऑपरेशंस जो हैं वो सर्चिंग द डेटा है, इंसर्टिंग द डेटा, डिलीटिंग द डेटा एंड ट्रैवर्सिंग द ट्री। और अगर लेक्चर नंबर 25 में हमने तमाम ऑपरेशंस को इन डिटेल देखा था, आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। हीप ट्रीज, इसमें हमने कहा था कि ऑल लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज लेफ्ट फील्ड।
Heap is a specialized tree-based data structure that satisfies the heap property. और वो heap property हमने अभी define भी की थी कि if A is the parent node of B, then key of A is ordered with respect to key of B, with the same ordering applying across the heap. तो उसमें हमने कहा था कि अगर तो ये दो केस है, एक min heap है, एक max heap. अगर तो max heap है तो key of the parent nodes are always greater than or equal to those of the children, and the highest key is in the root node. This kind of heap is called a max heap. और अगर आपका min heap है तो the key of the parent nodes are less than or equal to those of the children. तो min heap के केस में the keys of the parent nodes are less than or equal to than those of the children, and the minimum key is always at the root of the tree. Common operations जो heap trees पर होते हैं उसमें create heap है where you can create an empty heap, a variant create heap हो सकता है where you create a heap out of a given array of elements. Find max or find min, finding the minimum maximum item of a max heap or a minimum item of a min heap. Normally चूंकि root पे होते हैं आप सिर्फ root को access कर लें, you will get the results. Delete max or delete min means removing the root node of a max or min heap respectively. Increase key or decrease key, updating a key within a max or min heap respectively. Insertion है adding a new key to the heap, or merging है where you join two heaps to form a valid new heap containing all the elements of both the heaps. तो ये भी हमने जो है heaps को लास्ट लेक्चर नंबर 26 में बहुत डिटेल से देखा था. तो जो दूसरा आज हम ट्रीज को जिसको ज़्यादा बाइनरी ट्री को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द थ्रेडेड बाइनरी ट्री. हमने ये देखा था कि इन अ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज विद n नोड्स वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो हमने ये देखा था कि n+1 लिंक फील्ड्स दे कंटेन्स नल एंट्रीज. लीव्स नहीं है तो नल हो जाएंगे. It highlights the fact that if in a binary tree more than 50% of the link fields are with null values, thereby wasting the memory space. अब उस वेस्टेज को हम किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे a threaded binary tree which is defined as following. A binary tree is threaded by making all right child pointers that would normally be null point to the in-order successor of the node. इन ऑर्डर सक्सेसर जिसने आना है, इन ऑर्डर में इन ऑर्डर वो है जिसमें आप लेफ्ट को पहले प्रोसेस करते हैं, फिर आप रूट को विजिट करते हैं एंड देन यू प्रोसेस द राइट सब ट्री. तो ऑल राइट चाइल्ड पॉइंटर दैट वुड नॉर्मली बी नल विल पॉइंट टू द इन ऑर्डर सक्सेसर, एंड ऑल लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर दैट वुड नॉर्मली बी नल उसको हम पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ द नोड. So threaded binary tree makes it possible to traverse the values in a binary tree via a linear traversal that is more rapid than a recursive in-order traversal. So it is also possible to discover the parent of a node from a threaded binary tree without explicit use of parent pointers or a stack. And this can be very useful where stack space is limited or where a stack of parent pointer is unavailable. और ये हमें उस वक्त नॉर्मली चाहिए होता है कि we're finding the parent pointer via the depth first search. अब ये आपको फिगर में मैं दिखा रहा हूँ threaded binary tree. तो हम ये एक इसको डिफाइन ये करते हैं कि consider a node K that has a right child R. ये हम node K लेते हैं, ये उसका right child R है. Then the left pointer of R, it must be either a child or a thread back to K. ठीक है ना जी, बैक टू के बताते वो बेसिकली खुद है. इन केस द आर हैज अ लेफ्ट चाइल्ड, दैट लेफ्ट चाइल्ड मस्ट इन टर्न हैव आइदर अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स ओन और अ थ्रेड बैक टू के, एंड सो ऑन फॉर ऑल द सक्सेसिव लेफ्ट चिल्ड्रन. And by following the chain of pointers from R, we will eventually find a thread pointing back to K. And the situation is symmetrically similar when Q is the left child of P. We can follow Q's right children to a thread pointing ahead to P. तो ये हम आपको थ्रेड जिसमें अगर वो ये नॉर्मली जो नल होते हैं तो ये हम उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर इन सक्सेसर की तरफ हम पॉइंट करेंगे. अब इसमें there can be two types of threaded binary trees. Single thread है तो each node is threaded towards either the in order predecessor or in order successor.
और जो डबल थ्रेडेड है तो ईच नोड जो है इज थ्रेडेड टुवर्ड बोथ द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर एंड इन ऑर्डर सक्सेसर। उसमें वो हम देखेंगे कि अगर हम इसका थोड़ा सा अगर हम ये देखें तो वो इसमें अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल में जाएंगे, इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट होना है। अब लेफ्ट में सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद इसका जो लेफ्ट पॉइंटर है वो नेक्स्ट 3 है, रूट पे है, रूट के बाद राइट पे जाएगा, राइट के बाद इसने रूट पे जाना, तो देखें इसके बाद वो उसको पॉइंटर उसने रखा हुआ थ्रेड जो है। अब उसके बाद उसने राइट पे जाना है, अब इसमें भी जो है वो पहले लेफ्ट पे जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर राइट पे जाएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इन होगा, फिर आएगा। ये देखिए उस तरह ये सिंगल है। और डबल में जो है ये इसका सक्सेसर है और इसका प्रीडिसेसर, वो चाहे तो हम नल भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको यहाँ से कर सकते हैं। इसका चूंकि अगर आप ये देखें तो ये सबसे पहले इसने इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है, इसका सक्सेसर ज़रूर है। तो अगर इसका जो है ये इसका प्रीडिसेसर है और ये इसका सक्सेसर, ई का प्रीडिसेसर, ई का सक्सेसर, जी का ये आपका प्रीडिसेसर है, सक्सेसर इसमें आगे आएगा। सक्सेसर जो ऑलरेडी है तो आप ये देख लें कि उसमें आगे आ रहा है। और एच का जो है प्रीडिसेसर ये है, सक्सेसर ये है। अगर हम इसी का देखें तो थ्रेड्स आर रेफरेंस टू द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द नोड्स अकॉर्डिंग टू एन इन ऑर्डर ट्रावर्सल। इन ऑर्डर ऑफ द थ्रेडेड इस थ्रेडेड ट्री का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसके अगर हम देखें तो अगर हम द प्रीडिसेसर ऑफ ई जो है, ई का प्रीडिसेसर डी है और उसका सक्सेसर जो है वो एफ है। तो अब ये इसका राइट साइड पे देखेंगे तो इसका राइट साइड जो है वो बी को जा रहा है, इसका राइट साइड लेफ्ट इसका फ्रॉम सी टू डी, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट नहीं है। एच का लेफ्ट ये है और एच का राइट ये है। तो इसी तरह हम जो है वो डबल जब थ्रेडेड आप ट्री करेंगे तो आप ये देखें कि इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो वो 3 का जो है वो बेसिकली नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि बेसिकली इसका जो है वो प्रीडिसेसर, सक्सेसर तो 4 है, प्रीडिसेसर 2 गलत भी हो सकता है। और जो चूंकि जो इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं होगा, इसका सक्सेसर कोई नहीं होगा, इसलिए हम इसको नल पे रखेंगे और इसको भी डैंगलिंग, इसको भी नल कर देंगे ताकि डैंगलिंग ना हो। तो लेफ्ट थ्रेड में इसके ये होगा, इसके राइट थ्रेड में नहीं होगा, इसके बेसिकली लेफ्ट थ्रेड में ये होगा, प्रीडिसेसर का सक्सेसर आगे आएगा। एडवांटेजेस क्या है बाइनरी थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज की, कि इसका जो ट्रावर्सल ऑपरेशन है इट इज फास्टर देन ऑफ इट्स अनथ्रेडेड वर्जन, बिकॉज विद थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल विच कैन रन फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर द बॉदरेशन ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट, मीन स्टैक और उस किस्म की जरूरत नहीं होगी। We can efficiently determine the predecessor and successor nodes starting from any node. A stack is required to provide upward pointing information in the tree, whereas in a threaded binary tree, without having to incur the overload of using a stack mechanism, the same can be carried out with the help of the threads. So any node, it can be accessible from any other node. Threads are usually more to upward, where links are downward. तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ थ्रेडेड ट्री वन कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन एंड नोड्स आर इन फैक्ट सर्कुलरली वो लिंक्ड होते हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन अनथ्रेडेड काउंटर पार्ट बिकॉज देयर वी कैन ओनली मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। तो इंसर्शन इनटू एंड डिलीशन फ्रॉम अ थ्रेडेड ट्री आर ऑल्दो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस हैं, सिंस वी हैव टू मैनिपुलेट बोथ द लिंक्स एंड देयर थ्रेड्स, हमने दोनों को मैनिपुलेट करना होता है, बट दे आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। विकीपीडिया पे और मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स पर इनका कोड दिया हुआ है विद एग्जांपल्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज क्या है कि दे आर स्लोअर ट्री क्रिएशन होती है इसमें, बिकॉज सिंस थ्रेड्स नीड्स टू बी मेंटेन्ड, दिस कैन पार्टली बी एलिविएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्री एज अ नॉन थ्रेडेड ट्री and then threading it with a special library function. In theory हम ये कह सकते हैं कि threaded trees need 2 extra bits per node to indicate where
whether each child pointer contains to an ordinary node or to the node successor या predecessor, वो हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा। अब हम जो है यहाँ तक हमने देखा है उसको थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज को। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं जिसको हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कहते हैं, हाइटेड बैलेंस ट्रीज भी कहते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्रीज जो हैं दे आर यूजफुल फॉर एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटिंग डायनामिक सेट ऑपरेशंस, जिसमें कि सर्च, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, मिनिमम, मैक्सिमम, इंसर्ट और डिलीट का है। और ये तमाम ऑपरेशंस आपके बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ एच टाइम में इस्तेमाल हो जाते हैं रन टाइम में, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री, और हाइट ऑफ द ट्री हमने कहा कि log of n to the base 2 होती है। When the tree is balanced, that is its height is log of n, अगर वो balanced है तो operations are indeed very efficient. However, जो आपका insert and delete जो है, ये दोनों operations हमने last lecture में भी देखे थे, they alter the shape of the tree and they can result in an unbalanced tree. In the worst case हमने ये देखा था कि ये h will be equals to big O to the order of n है, which is not better than a linked list. तो बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग में वी नीड अ मेथड फॉर कीपिंग द ट्री ऑलवेज बैलेंस्ड। जैसे हम इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं वो इम्बैलेंस होता है, तो वी ऑलवेज नीड टू बैलेंस द ट्री। और हमने ये भी देखा कि जब भी आपका इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन हो दे कॉजेज इम्बैलेंस एंड वी वांट टू करेक्ट दिस इन एन एटमोस्ट जो है log of n टाइम में हो जाए, तो जिसमें हमें फिर नो कॉम्प्लेक्सिटी ओवरहेड नहीं पड़ेगा। So we had to add a requirement on the height of the subtrees, और हमने ये देखा कि insertion और deletion operations जो हैं ये डिपेंड कर रहे होते हैं height of the tree की। अगर हम height of the tree कोशिश करते रहें कि ये कम होती जाए तो उतने हमारे operations ज़्यादा बेहतर performance देंगे। The most popular जो है balance tree structures, उसमें हम 3 को देखेंगे। AVL trees हैं where subtrees height difference is of at most 1 होता है। रेड ब्लैक ट्रीज हैं where subtree height difference is less than equals to log of n plus 1 है। और इसके अलावा हम स्प्ले ट्रीज को भी देख सकते हैं कि जो बेसिकली जिसमें हाइट जो है वो और भी बेहतर हो सकती है। AVL ट्री जो है बेसिकली ये नाम आया है ये ऑथर्स का जिन्होंने ये बेसिकली हाइट बैलेंस ट्री भी कहते हैं। एडेल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस ने 1962 में इनको प्रपोज किया था एल्गोरिथम को, इसलिए हम उनके नाम पर ही इनको AVL ट्री कहते हैं। A फॉर एडेल्सन, V फॉर वेल्स्की एंड L फॉर लैंडिस। एन AVL ट्री इज अ बाइनरी ट्री विद वन बैलेंस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एनी नोड इन द ट्री, ये नोड है, द हाइट डिफरेंस बिटवीन इट्स लेफ्ट एंड राइट सब ट्री जो है इज एट मोस्ट 1 होगा। हाइट डिफरेंस 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इफ एन एनी टाइम दे डिफर बाय मोर देन 1, रीबैलेंसिंग इज डन टू रिस्टोर दिस प्रॉपर्टी। ये h-2 है, ये h-1 है, ये हाइट ऑफ उसकी आ गई, ये h आ गई। तो साइज ऑफ द ट्री जो हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ द ट्री विल बी इक्वल्स टू s ऑफ h इक्वल टू s ऑफ h-1 प्लस h ऑफ h-2 प्लस 1। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं AVL ट्री की। अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें जो है ये आपके हाइट का उसमें डिफरेंस है। ये AVL ट्री है क्योंकि इसमें जो है वो मैक्सिमम एटमोस्ट जो है वो +1 से डिफरेंस कर रहा है। और ये जो है दिस इज़ नॉट एन AVL ट्री क्योंकि नोड्स 8 और 12 में अगर आप ये देखेंगे तो उनका हाइट जो है वो गड़बड़ हो गई, डिफरेंट हो गई। What is the minimum and maximum height of an AVL tree with n nodes? क्या हो सकती है? हम आपको अगर आपको रिकर्शन अगर याद हो कि t of n जो है वो हमने कहा था कि t of n minus 1 plus t of n minus 2 plus 1, तो मिनिमम हाइट जो है वो फिल ऑल लेवल्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे अगर आप ये आपका रूट नोड है तो दिस विल बी h-1 और h-2, ये h-1 है तो दिस विल बी h इज इक्वल टू log ऑफ n आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट क्या है कि ऑल लेवल्स हैव अ डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ 1। द स्मॉलेस्ट AVL ट्री ऑफ डेप्थ 1 हैज 1 नोड। द स्मॉलेस्ट AVL ट्री ऑफ डेप्थ 2 हैज 2 नोड्स। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि s ऑफ h इज इक्वल टू s माइनस h प्लस s माइनस 2 प्लस 1। s1 जो है वो आपका 1 है, s2 2 है। तो उससे अगर हम ये देखेंगे तो ये हमने कहा था कि एट मोस्ट 1 से ज़्यादा का डिफरेंस
नहीं होगा। बैलेंसिंग द AVL trees बिफोर द ऑपरेशन द ट्री इज बैलेंस्ड। जैसे ही आपने आफ्टर इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन किया द ट्री माइट बिकम अनबैलेंस्ड, तो वी नीड टू फिक्स द सब ट्रीज दैट बिकेम अनबैलेंस्ड। तो हाइट ऑफ एनी सब ट्री हमने कहा दे आर चेंज बाय एट मोस्ट 1, thus if a node is not balanced the difference between its children heights is 2 हो जाता है। तो 4 पॉसिबल केसेस हम देखते हैं कि विद जिसमें हाइट डिफरेंस 2 हो जाएगा और हमने उसको बैलेंस करके 1 करना है। अगर हम केस 1 देखेंगे तो आपका जो लेफ्ट सब ट्री है इज हायर देन द राइट सब ट्री बिकॉज ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। आप देख रहे हैं केस 2 में क्या हो सकता है, आपका जो राइट सब ट्री है इज हायर देन द लेफ्ट सब ट्री बिकॉज ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड। केस 2 आपका ये है कि आपका जो लेफ्ट सब ट्री है इज हायर देन द राइट सब ट्री बिकॉज ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, इसकी वजह से। और केस 3 है कि आपका राइट सब ट्री इज हायर देन द लेफ्ट सब ट्री because of the left subtree of the right child। ये 4 केसेस हैं ऑफ इम्बैलेंस। तो फिक्सिंग केस 1 जैसे हमने कहा था कि वो जो है उसको हम रोटेशन करेंगे टुवर्ड्स राइट रोटेट करेंगे। राइट रोटेशन से क्या होगा कि अब आपका K1 जो है वो आप ये देखें कि वो रूट पे चला जाएगा, K2 उसका चाइल्ड बन जाएगा और जो बी जो सब ट्री था जो पहले इसका राइट था वो के का लेफ्ट हो जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि वो सारे बैलेंस हो गए और वो सेम हाइट पर आ गए। एट दिस रोटेशन हम जो कह रहे हैं इट विल टेक अ कांस्टेंट टाइम 1 एंड इट विल रिस्टोर द बैलेंस। इसमें यह इंसर्शन अगर हम करेंगे द हाइट ऑफ सब ट्री ए इज इंक्रीज्ड आफ्टर द रोटेशन द ट्री हैज द सेम हाइट एज बिफोर द इंसर्ट। Deletion with the height of the subtree C is decreased after the rotation. The tree has a lower height by 1 from before. Insertion की example देखते हैं। हमने 1 को insert किया इस level पर तो ये गड़बड़ होना शुरू हो गया। ये आपका K1 है, ये K2 है, ये A, B और C आ गए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जब इंसर्शन की जब रीबैलेंसिंग होगी तो अब ये देखें 1 इधर आ गया और ये हमने यहाँ से बेसिकली K1 को इसको K1 को हम रूट पे ले गए, इस सब ट्री की इसको नीचे ले गए और जो 6 जो पहले इसका राइट सब चाइल्ड था वो हमने इसका लेफ्ट सब चाइल्ड बना दिया। इससे आप ये देखें कि वो फिर मुड़ के ओरिजिनल अपनी सूरत हाल में वापस आ गए। केस 4 हम देखते हैं, ये आपका ये केस है, इसमें हम लेफ्ट पे रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि K2 जो है वो यहाँ से आपका रूट पर आ जाएगा और इसका जो राइट पॉइंटर है वो अब बेसिकली अब K1 को पॉइंट करेगा और K1 के राइट पे B चला जाएगा और अब ये देखेंगे ये ट्री बैलेंस हो गया। एनालिसिस वही है, इंसर्शन या डिलीशन का हमने कहा था बेसिकली तो सेम केस है कि जिसमें वो हो जाएगा। केस 4 को देखते हैं डिलीशन के एग्जांपल कि हमने इसमें से ये आपका K1 है, ये आपका K2 है, ये उसका वो चाइल्ड है, हमने 4 को डिलीट करना है तो आपको 4 डिलीट करेंगे तो 5, 7 और 9 हो जाएगा। इसको हम लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा और अब ये देखेंगे हाइट उसकी कम हो गई। फिक्सिंग केस 2 फर्स्ट ट्राई करते हैं कि अब इसमें जो है वो सिंगल रोटेशन रोटेशन कर सीरीज ऑफ रोटेशन ऑन द सब ट्री ऑफ K1 टू रिड्यूस केस 2 टू केस 1 पे हम इसको लेके आएंगे। राइट रोटेट किया तो K1 ऊपर चला गया और K2 में B और C आ गए। अभी भी ये बैलेंस नहीं है। राइट देन लेफ्ट रोटेशन, हमने इसको राइट पे पहले किया फिर लेफ्ट पे किया तो अब ये देखें कि ये सिचुएशन ये हो गई। इसमें हम राइट रोटेशन करेंगे ऑन K3 तो अब ये देखें कि आपका ट्री जो है वो बैलेंस हो गया। केस 2 की इंसर्शन एग्जांपल देखते हैं कि 5 को हमने इंसर्ट करना। ये आपका K1 है, ये K3 है, ये K2 है। लेफ्ट रोटेशन करेंगे ऑन 4, यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करेंगे
तो ये 4 और 5 इधर चला गया है, 6 ऊपर आ गया, 8, 10, 12, 16 ये उसी तरह चल रहा है। और उसके बाद हम राइट रोटेशन करेंगे 8 से। जब इसको राइट रोटेट किया तो 6 आपका रूट पे आ गया, 8 इधर आ गया और ये 10 उसके चाइल्ड में चला गया और ये 4 ये ऊपर चले गया। तो आप ये देखें कि आपका जो इनिशियल था हमने उसको बैलेंस को आफ्टर इंसर्शन जो है वो रेस्टोर कर लिया। हम हाइट इसकी उसी तरह रख रहे हैं ताकि जितनी कम हाइट होगी उतनी प्रोसेसिंग बेहतर होगी। फिक्सिंग केस 3 को हम देखते हैं कि राइट और फिर हम लेफ्ट रोटेशन को, राइट रोटेशन ऑन K3 पे करेंगे और लेफ्ट रोटेशन ऑन K1 पे करेंगे। तो अगर हम राइट रोटेशन किया तो ये कैसे के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद हमने लेफ्ट रोटेशन ऑन K3 पे यहाँ पर राइट रोटेशन की और उसके बाद हमने लेफ्ट रोटेशन की ऑन K1। उसके बाद आप ये देखेंगे कि लेफ्ट रोटेशन के बाद ये बराबर हो जाएगा। एनालिसिस वही है जो केस 2 में है। तो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस जो हैं, इंसर्ट एंड डिलीट द एलिमेंट एज इन रेगुलर सर्च ट्री एंड देन रीबैलेंस, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ हमने रीबैलेंस करना है। ऑब्जर्वेशन हमें क्या करनी है कि ओनली नोड्स ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड दैट वाज चेंज्ड मे बिकम अनबैलेंस्ड, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो एज्यूम करेंगे वी विल गो लेफ्ट, द राइट सब ट्री वाज नॉट चेंज्ड एंड स्टेज बैलेंस्ड एंड दिस होल्ड्स एज वी डिसेंड डाउन द tree. After adding or deleting a node, we will go back to the root, rebalance करेंगे every node on the way as necessary. The path is जो है वो आपको O log of n में हो जाएगा and each node balance takes constant time big O to the order of 1. Thus the total time for every operation is big O to the order of log of n, which is the height of the tree. And for the insertion we can do better. How? When going up after the first balance, the subtree that was balanced has height as before, so all higher nodes are now balanced again. And we can find this node in the path which will from where we will go down to the leaf. So one pass is enough for balancing. EVL trees की अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटीज देखें तो उसकी जो स्पेस की वर्स्ट केस में बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n है, एवरेज केस भी यही है। स्पेस के हवाले से सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट दे ऑल बीइंग परफॉर्म इन big O to the order of log of n to the base 2. Insertion and deletions may require the tree to be rebalanced by one or more tree rotations, जो कि अभी हमने आपकी देखी हैं। इनके एल्गोरिथम्स वगैरह आप विकीपीडिया पे उसके अलावा भी दूसरी साइट से ले सकते हैं। जो दूसरा जो नेक्स्ट हम सेल्फ बैलेंसिंग के हवाले से देखेंगे वो रेड ब्लैक ट्रीज हैं। The binary search trees should be balanced, हमने जो पहले कहा हुआ है। AVL trees जो हैं they need 2 passes, top down insertion deletion, उसके बाद bottom up operation for rebalancing and it needs recursive implementation. जो red black trees हैं they need 1 pass, इसको हम top down rebalancing भी कहते हैं and insertion deletion इसमें होती है। It can be implemented iteratively, ये recursion की बजाय तो faster method है। Red black trees they have slightly weaker balance restriction, क्योंकि उसमें less effort to maintain की रखी जाती है। In practice the worst case is similar to the AVL tree which is big O to the order of log of n to the base 2. हम red black tree के nodes के rules देखते हैं। Important है कि every node of the tree is colored either red or black. रूट नोड हमेशा आपकी ब्लैक होगी। इफ अ नोड इज रेड इट्स चिल्ड्रन मस्ट बी ब्लैक। ये देखें जितनी नोड रेड हैं उनके चिल्ड्रन हमेशा ब्लैक होंगे। मींस कंसेक्यूटिव रेड नोड्स दे आर नॉट अलाउड। एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू अ सिंगल टू अ नल रेफरेंस मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। अगर हम यहां से जा रहे हैं, एक है और हम यहां से भी जाएं तो यहां पहुंच जाएंगे, नील है, इसको हम देख सकते हैं। एवरी पाथ फ्रॉम अ नोड टू अ नल रेफरेंस मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। और यहां से भी देखें तो यहां से भी हम देखेंगे तो वो सेम ही रहेगा। रेड ब्लैक ट्रीज की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ईच पाथ मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स,
रूल नंबर 4 है। कंसेक्यूटिव रेड नोड दे आर नॉट अलाउड, रूल नंबर 3 है। तो लॉन्गेस्ट पाथ इज एट मोस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो वो हमने थोड़ा सा ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हैं हमने कि वेयर बी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ब्लैक टोटल नोड फ्रॉम द रूट टू अ लीफ, n will be the total of all nodes, h will be the height। तो हम ये देखें तो 2b minus 1 is less than equal to n, और ये हम 2b plus power 2b minus 1 करेंगे। तो अगर हम इसको ये -1 और इसको इधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो log of 2b power b will be equals to, इसको हम सर्कुलेट अगर करें तो ये b बन जाएगा। एंड और इसको भी हम करें तो log of 2b is equals to 2b। तो वो हम log वाले यहाँ पे पुट करेंगे वेयर b is less than equals to log n plus 1, log of n plus 1 is less than equals to 2b। तो वो हम 1/2 log of n plus 1 is less than equals b less than equals log n plus 1। और इसको जब हम सॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, तो आप ये देखें log of n plus 1 to the base 2 is less than equals to h and which is less than equals to log of n plus 1। वो हमने प्रूफ कर दिया है। तो ऑल ऑपरेशंस जो हैं दे आर गारंटीड टू बी परफॉर्म्ड इन लॉगरिथमिक टाइम। अगर हम इसको हाइट ऑफ अ नोड देखें तो नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ टू द लीफ, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पे लीफ का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो हाइट क्या है, इसकी बनेगी 4, इसकी हाइट 3, इसकी हाइट 2, ये बनेगी। और ब्लैक, इसको ब्लैक हाइट जो है, क्योंकि हमने कहा था कि कंसेक्यूटिव उसमें नहीं होंगे, तो ब्लैक हाइट जो है ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ ब्लैक नोड इंक्लूडिंग निल ऑन द पाथ फ्रॉम एक्स टू अ लीफ नॉट काउंटिंग एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 बनेगा, इसके लिए 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें ये 2 है, 1 2, उसके बाद ये आपका निल हो जाता है और इस पे आपका 1 है, डायरेक्ट भी है, और इसके हम देख सकते हैं। तो रेड ब्लैक ट्री की जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो बहुत आसान है। इसका जो इंसर्ट एंड डिलीट का जो ऑपरेशंस हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन कोड यू कैन विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट wikipedia.org wiki red black _ tree ऑपरेशंस पर आप देखेंगे तो उसका कोड आपको मिल जाएगा। उसको काइंडली कॉपी कीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए ज़रा सा, अपनी उसको ऊपर प्रोग्राम लिखिए एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस की और एवरेज केस में big O to the order of n है। सर्च इंसर्ट डिलीट लॉगरिथमिक है, big O to the order of log of n to the base 2। insertions and deletions they may require the tree to be rebalanced by one or more tree rotations, जो कि अभी हमने आपको मुख्तलिफ केसेस की मदद से समझाई है। जो स्प्लिट ट्री है इट इज़ सेल्फ एडजस्टिंग। ये थर्ड हमारी जो आखिरी हम देख रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग के लिए। बाइनरी सर्च ट्री विद द एडिशनल प्रॉपर्टी दैट रिसेंटली एक्सेस्ड एलिमेंट्स दे आर वेरी क्विक टू एक्सेस अगेन। इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इंसर्शन का है, लुकअप, रिमूवल, ये तमाम लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। बिग O to the order of log n अमॉर्टाइज टाइम में हो जाते हैं। फॉर मैनी सीक्वेंसेस ऑफ नॉन रैंडम ऑपरेशंस स्प्लिट ट्रीज को हमने ये देखा है कि दे परफॉर्म बेटर देन द अदर सर्च ट्रीज इवन व्हेन द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द सीक्वेंस इज अननोन। तो स्प्लिट ट्रीज जो हैं they give a better performance। split trees में जो है for many sequences of non-random operations split tree जो है they perform better than the other search trees even when the specific pattern of the sequence is unknown। तो स्प्लिटिंग ऑपरेशन पे हम देखते हैं कि ये एक जरा डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिसमें हम रीबैलेंसिंग जरा डिफरेंट तरीके से करते हैं कि ऑल नॉर्मल ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री आर कंबाइंड विद वन बेसिक ऑपरेशन व्हिच इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। एंड स्प्लिटिंग द ट्री क्या होता है कि फॉर अ सर्टेन एलिमेंट्स इफ वी विल रीअरेंज द ट्री, वी रीबैलेंस करेंगे जब इंसर्शन एंड डिलीशन होगी, सो दैट द एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द रूट ऑफ द ट्री। वन वे इसको करने का तरीका यह है कि यू फर्स्ट परफॉर्म अ स्टैंडर्ड बाइनरी ट्री सर्च फॉर द एलिमेंट इन क्वेश्चन एंड देन यूज द ट्री ऑपरेशंस इन अ स्पेसिफिक फैक्शन टू ब्रिंग द एलिमेंट टू द टॉप। Alternatively हम क्या कर सकते हैं, we can use a top-down algorithm which can combine the search and the tree reorganization into a single phase। तो अब हम स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि when a node x
कोई arbitrary node is accessed, a supply operation is performed on X to move it to the root. To perform our supply operation, we carry out a sequence of supply steps, each of which moves X closer to the root. हम series of supply के जो है वो steps लेंगे ताकि X root की तरफ move हो जाए. By performing a supply operation on the node of interest, after every access, the recently accessed nodes are kept near the root and the tree remains roughly balanced, so that we achieve the desired amortized time bounds. अब यहाँ पे 3 factors जो है, each particular step depends upon 3 factors. ये factors ज़हन में रखने हैं क्योंकि अभी जो आगे हम आपको examples दिखाएंगे तो उसमें ये factors ही apply हो रहे हैं. हमने ये देखना है कि whether X is the left or right child of its parent node P. अगर वो X उसका left child है या right child है. हमने ये देखना है कि P जो है वो root है या नहीं, और अगर root नहीं है तो P का जो left or right child of its parent जो है तो उसका अगर रूट नहीं तो वो किसी ना किसी का लेफ्ट या राइट चाइल्ड होगा. तो हमने उसका ग्रैंड पेरेंट भी देखना है, मीन्स कि उसको पेरेंट कौन है, मीन्स ग्रैंड पेरेंट ऑफ एक्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू सेट द ग्रैंड पेरेंट ऑफ एक्स टू नाउ पॉइंट टू एक्स आफ्टर एनी सप्लाई ऑपरेशन. अगर आपका ग्रैंड जो है वो नल है, देन एक्स ऑब्वियसली इज नाउ द रूट एंड मस्ट बी अपडेटेड एज. ये देखें, इसमें पहला जो है वो जिग स्टेप होता है. दिस स्टेप इज डन व्हेन पी इज द रूट. अगर पेरेंट आपका ऑलरेडी रूट पे है और एक्स को अगर आपने करना है तो द ट्री इज रोटेटेड ऑन द एज बिटवीन एक्स एंड पी. उसको रोटेटेड ऑन द एज करेंगे तो एक्स ऊपर आ जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड यही रहेगा. अब पी चूंकि इसका चाइल्ड बनेगा रूट पे, ये इसको लेके आ रहे हैं तो ये जो बी है वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और सी तो ऑलरेडी उसका राइट सब ट्री है. Zig steps exist to deal with the parity issue and will be done only as the last step in a supply operation and only when X has odd depth at the beginning of the operation. ठीक है, उसकी odd depth होगी तभी हम zig करेंगे. Zig और zag क्या है? ये स्टेप हम उस वक्त परफॉर्म करते हैं when P is not the root, P क्योंकि रूट नहीं है, and X and P are either both the right children or are both the left children. या तो वो लेफ्ट चिल्ड्रन है या उसके राइट चिल्ड्रन है. फिगर जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इट शोज द केस वेयर एक्स एंड पी दे आर दी बोथ लेफ्ट चिल्ड्रन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट. द ट्री इज रोटेटेड ऑन द एज. एज से हम इसको रोटेट करेंगे, ज्वाइनिंग पी विद इट्स पेरेंट. पी को उसके पेरेंट के साथ ही रखेंगे, ठीक है ना जी. देन रोटेटेड ऑन द एज ज्वाइनिंग एक्स विद पी. अब ये देखिए, अब ये बी है ना, अब ये बी को हमने पी के सबसे पहले ये जिग ऑपरेशन 2 दफा जिग करना पड़ेगा. तो पहली दफा जिग किया तो अब चूंकि ये उसको पॉइंट करेगा तो उसका जो लेफ्ट है वो इधर चला जाएगा और ये इसके लिए लेफ्ट पर आ जाएगा. अब चूंकि दूसरी दफा जिग करेंगे तो फिर ये रूट पर आ जाएगा, तो इसलिए आप ये देखेंगे इसका जो बी है वो पी की तरफ चला जाएगा और ये इस तरह आ जाएगा. ये 2 दफा जिग ऑपरेशन होगा. ये उस वक्त होगा जब आपका x जो है वो इवन पे आ जाएगा. और उसका नेक्स्ट जो है वो आपका जिग जैग स्टेप है. दिस स्टेप इज डन व्हेन p इज नॉट द रूट एंड x इज द राइट चाइल्ड एंड p इज द लेफ्ट चाइल्ड और वाइस वर्सा. द ट्री इज रोटेटेड. ट्री को हम रोटेट करेंगे ऑन द एज बिटवीन x एंड p. पहले हम x एंड p पे करेंगे, देन रोटेटेड ऑन द एज बिटवीन x एंड इट्स न्यू पेरेंट. जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा p और इसका ये b इधर चला जाएगा, ये c तो रहेगा, ये x इधर आ जाएगा. उसके बाद जब हम इसको जैग करेंगे उसके साथ तो वो आप ये देखें कि उसका जो c है वो इधर चला जाएगा और अब ये x रूट पर आ गया. तो स्प्लिट ट्री में जो इंसर्शन एंड डिलीशन है, इंसर्शन में क्या है कि इसका जो है टू इंसर्ट अ नोड x इनटू अ स्प्लिट ट्री, तो वी विल फर्स्ट इंसर्ट द नोड एज विद द नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री जैसे हम करते हैं. वी विल देन स्प्ले द न्यूली इंसर्टेड नोड x टू द टॉप ऑफ द ट्री. हम उसको करेंगे. इफ देयर इज अ डुप्लीकेट है, द नोड होल्ड्स द डुप्लीकेट एलिमेंट इज देन स्प्लेड. डिलीशन के केस में स्प्ले सिलेक्टेड एलिमेंट टू रूट, डिस्कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज फ्रॉम द रूट,
उसके बाद हमने एक यू हैव टू डू वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर स्प्ले मैक्स आइटम इन टीएल देन टीएल हैज नो राइट चाइल्ड, हम स्प्ले मिन आइटम करेंगे इन टीआर देन टीआर हैज नो लेफ्ट चाइल्ड, देन वी कनेक्ट अदर सब ट्री टू एम्प्टी चाइल्ड, and if the item to be deleted is not in the tree, the node last visited in the search is splayed। और इसका तमाम जो कोड है बहुत सिंपल है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये आपको इस वेबसाइट पर दी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। काइंडली इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट। स्प्ले ट्री की जो है एवरेज केस में तो वही है ओ लॉग ऑफ 2, मगर इसमें जो वर्स केस है चूँकि अमोर्टाइज्ड है तो इसकी सर्च इंसर्ट एंड डिलीट इन बोथ केस में log of n to the base 2 ये amortized है। इंसर्शन डिलीशन दे मे रिक्वायर द ट्री टू बी रीबैलेंस्ड बाय वन और मोर ट्री रोटेशंस। और इसके बाद हम अब बात करेंगे बी ट्रीज की। ये एक स्पेशल ट्रीज हैं that keeps the data sorted and allows searches, sequential accesses, insertions and deletions all in logarithmic time। B tree जो है it is a generalization है of a binary tree in that a node can have more than 2 children। अभी तक हमने जितने ट्रीज की बात कर रहे थे उसमें नोड में जो है वो आपका एक नोड जो है वो उसके 2 से ज़्यादा चाइल्ड को बाइनरी ट्रीज की बात करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उसकी स्पेशलाइजेशन, मगर इसमें हम शर्त ये रख रहे हैं कि आपके जो चाइल्ड हैं या जो वो 1 से 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसको एज ब्रांचिंग बेसिकली कितने की जितनी हम ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे आपकी ट्री की डेप्थ कम हो जाएगी, और डेप्थ जब तक हमने ये देखा है कि आपके जितने भी इंसर्शन डिलीशन एंड सर्चिंग के जो एल्गोरिथम्स हैं अभी तक हमने जो देखे थे ट्रीज के ऊपर वो तमाम log of n to the base 2 मीन्स कि आपकी ट्री हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम जितनी हाइट कम रखेंगे उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इन सर्चिंग इंसर्शन एंड डिलीशन। Unlike self-balancing tree search trees, the B tree is optimized basically for systems that read and write large blocks of data, तो स्पेशली डेटाबेसेस में इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स में इसमें जो है और डिस्क एक्सेसेस वगैरह में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अदर ट्रीज हम इसको इंडेक्सिंग जो है वो थ्रू बी ट्रीज करते हैं। It is commonly used in the databases and the file systems, so that's why I do want to discuss the B trees। इन बी ट्रीज जो है आपके जो इंटरनल या नॉन लीफ नोड्स दे कैन हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स विद इन सम प्री डिफाइंड रेंज, वो हमें प्री डिफाइंड रेंज पहले से रखनी होती है। When data are inserted or removed from a node, its number of child node changes। तो in order to maintain the predefined range, internal nodes may be joined or they may be split because the range of child node is permitted। तो इसलिए हमें बी ट्रीज में वी डू नॉट नीड टू रीबैलेंस एज फ्रीक्वेंटली एज द अदर सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्रीज जैसे हमने AVL, रेड ब्लैक और वो स्प्लिट ट्रीज देखे थे, बट मे वेस्ट सम स्पेस सिंस नोड्स आर नॉट एंटायरली फुल। इसमें वेस्टेज ऑफ स्पेस जरूर हो सकती है मगर आपकी जो सर्चिंग और इंसर्शन एंड डिलीशन है वो एफिशिएंट हो जाएगी। The lower and upper bounds on the number of child nodes are typically fixed for a particular implementation, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अगर हम इसको डिफाइन करें बी ट्रीज को तो अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m is an m-way tree, that is a tree where each node may have up to m children, in which up to m children हो सकते हैं। The number of keys in each of non-leaf node is 1 less than the number of its children, and these keys partition the keys in the children in the fashion of a search tree। All leaves they are on the same level। All non-leaf nodes except the root have at least m over 2 children, जितने उससे हो सकते हैं। The root is either a leaf node भी हो सकता है और it has from 2 to m children हो सकते हैं। A leaf node contains no more than m-1 keys, उस पे m-1 की से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो सबसे important शर्त है कि the number m should always be odd, it should not be even। ये हम एक बी ट्री देख रहे हैं ऑफ ऑर्डर 5 containing 26। इसमें अब ये देखें ये फर्स्ट लेवल पर है, ये दोनों एक लेवल पर हैं, ये तमाम जो लीव्स हैं ये तमाम एक लेवल पे हैं। ऑल द लीव्स दे आर एट द सेम लेवल। क्योंकि ट्री बड़ा था तो मैं इसको पूरी तरह फिट नहीं कर सका। अब ये देखें कि ये एट द हाइट ऑफ 0 एट द हाइट ऑफ 2 आप ये देखें कि आपको पूरा ट्री कवर हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो कंटेनिंग 26, इसमें सिर्फ ये है कि आपको जो चाइल्ड हैं
दे कैन हैव मोर देन 1, और इसमें हमने मैक्सिमम को ऑर्डर 5 रखा है, इट मीन्स कि 4 से ज़्यादा इसमें वो एक लेवल पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, 4 से कम हो सकते हैं, तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ स्टोरेज तो हो सकती है, बट इनमें इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग इज क्वाइट एफिशिएंट। हम एग्जाम्पल देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ बी ट्री। सपोज वी स्टार्ट विद एन एम्प्टी बी ट्री एंड कीज अराइव इन द फॉलोइंग ऑर्डर 1, 12, 8, 2, 25, 5, 14 इस ऑर्डर में आ रही हैं, एंड वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5। तो जो पहली 4 है 1, 12, 8 एंड 2 दे गो इनटू द रूट, क्योंकि रूट के अंदर हम उसको रख सकते हैं, तो ये उसके अंदर आ जाएंगी कीज। ऑर्डर हमने कहा था कि m-1 तक हम रख सकते हैं, 1, 2, 8 एंड 12 वो कीज हम स्टोर कर सकते हैं। टू पुट द 5th आइटम इन द रूट वुड वायलेट द कंडीशन 5। वो कंडीशन 5 क्या थी कि m-1 होनी चाहिए, ऑर्डर 5 है। अब जो इसमें ऐड करेंगे तो वो m के बराबर हो जाएगा, तो वो वायलेट करेगा। तो देयरफॉर व्हेन 25 अराइव्स तो वी विल पिक द मिडिल की टू मेक अ न्यू रूट। तो इसमें अगर हम 25 को अगर इधर रख के देखें तो मिडिल चूंकि 8 है तो 8 को रूट बना देंगे। और तो इसमें हम इसका एल्गोरिथम एक नज़र देख लेते हैं, फिर आपको उसमें बता दूंगा कि we will attempt to insert the new key into a leaf. If this would result in the leaf becoming too big, we will split the leaf into 2, promoting the middle key to be the leaf's parent. If this would result in the parent becoming too big, we will split the parent into 2, promoting the middle key, and this strategy might have to be repeated all the way to the top. If necessary, we will the root split into 2 and the middle key is promoted to be a new root, making the tree 1 level higher. जो अब अभी हम करेंगे कि जब हमने ये 8 को जब 25 आया तो 8 को हमने मिडिल की को रूट बना के बाकी 2 को हमने चाइल्ड बना दिया। अब उसके बाद आपके 6, 14 एंड 20 आए तो वो आपके 6 इधर ऐड हो गया, 14 और 28 यहाँ पर ऐड हो गए। अब अगर कोई इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू का आएगा तो फिर ये गड़बड़ कर जाएगा। तो यहाँ तक ये अब ये देखें कि वो एडजस्ट हो गया। अब एडिंग 17 जो हम कर रहे थे, 17 ने बेसिकली इसमें ऐड होना था, वुड ओवरफिल इट, सो वी टेक द मिडिल की। तो इनमें देखें 17 मिडिल की है, वो उसको हम ऊपर एक लेवल ऊपर ले गए, प्रोमोटेड टू द रूट एंड स्प्लिट द लीफ, और लीफ को हमने स्प्लिट कर दिया 12 और इसके हवाले से। अब उसके बाद जब 7 आया, 7 इसमें शामिल हो गया, 52 आया इसमें शामिल हो गया, 16 आया इसमें शामिल हो गया, 48 आया इसमें शामिल हो गया। यहां तक तो अब जैसे आप करेंगे तो एडिंग 68 would cause us to split the rightmost leaf, promoting 48 to the root, क्योंकि उसमें तो वो 48 रूट पे चला गया। And adding 3 causes us to split the leftmost leaf, promoting 3 to the root, तो 26 और 29 जब ये वाले सीक्वेंस आया तो ये तो इसमें एडजस्ट हो गया। एडिंग 45 जो है वो इसमें स्प्लिट डाल देगा, एंड प्रोमोटिंग इसमें हम क्या करेंगे 28 को ऊपर ले जाएंगे, एंड दिस कॉजेज द रूट टू अगेन स्प्लिट, क्योंकि वो 5 से ज़्यादा हो गया तो इसमें मिडिल वाले को निकाल के हम इसको यूं हमने डिवाइड कर लिया। तो आज जो है देखें कि आपके इंसर्शन के बाद आपका जो ट्री है वो अभी हाइट आप उसकी देखें कि वो ज़्यादा नहीं हो रही, उसकी ब्रेड्थ बढ़ती जा रही है, हाइट कम करने। इसलिए इसमें इंसर्शन बी ट्रीज में आपकी इंसर्शन डिलीशन जो लॉगरिथमिक टाइम में है तो वो हाइट ऑफ द ट्री पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम हाइट को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ब्रेड्थ इंक्रीज करते जा रहे हैं। दिस इज द हाउ जो है वो। इसी तरह जब हम रिमूवल की बात करते हैं, डिलीशन, ड्यूरिंग इंसर्शन द की ऑलवेज गोज इनटू अ लीफ, फॉर डिलीशन वी विश टू रिमूव फ्रॉम अ लीफ। हम रूट से नहीं निकालेंगे, हम लीफ से निकालेंगे। देयर आर 3 पॉसिबल वेज वी कैन डू दिस। नंबर 1 क्या है कि इफ द की इज ऑलरेडी इन द लीफ नोड एंड रिमूविंग इट डजंट कॉज द लीफ नोड टू हैव टू फ्यू कीज, देन सिंपली रिमूव द की टू बी डिलीटेड। अब आपकी जो की है इज नॉट इन द लीफ, देन इट इज गारंटीड बाय द नेचर ऑफ अ बी ट्री दैट इट्स प्रीडिसेसर और सक्सेसर विल बी इन अ लीफ। In this case, we can delete the key and promote the predecessor or successor key to a non-leaf deleted key position. और अगर आपके if 1 or 2 lead to a leaf node containing less than the minimum number of keys, then we have to look at these siblings immediately adjacent to the leaf in question. और इसमें हम देखेंगे if one of them has more than the minimum number of keys, then we can promote one of its keys to the parent.
and take the parent key into our lacking. Or if neither of them has more than the minimum number of keys, then the lacking leaf and one of its neighbors can be combined with their shared parent. The opposite of promoting a key, and the new leaf will have the correct number of keys. If this step leaves the parent with too few keys, then we repeat the process up to the root itself if required. हम टाइप 1 इस पर डिलीशन देख लेते हैं. सिंपल लीफ डिलीशन है. एज्यूमिंग अ 5-way ट्री एज बिफोर हम उसी तरह ले रहे हैं. तो यहाँ पर आपके जो है आप ये देखें कि ऑलरेडी इस पोजीशन में है. तो हमने नंबर 2 को डिलीट करना है. सिंस देयर आर एनफ कीज इन द नोड वी जस्ट नीड टू डिलीट इट. आप इसको डिलीट करेंगे, आपको उसके अलावा आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है. सिंपल लीफ डिलीशन है. सिंपल नॉन लीफ डिलीशन है. आपने यहाँ से 52 को करना है. आप 52 को कर दें. देन वी विल बोरो द प्रीडिसेसर और इन दिस केस द सक्सेसर. हमने ये इसको डिलीट किया. 56 को वहां से बोरो कर लिया. 56 वहां पे पहुंच गया. ये छोटा हो गया. अब हम यहां पर ये कर रहे हैं कि केस नंबर 4 है कि टू फ्यू कीज इन द नोड एंड इट्स सिबलिंग्स. ये तमाम में 2 हैं, इसमें 3 हैं. वी नीड टू डिलीट 72. उसको हमने डिलीट किया. अब 69 में तो सिर्फ 2 फ्यू कीज एक ही रह गई है. हम इनको ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन बैक करके उस तरह कर लेंगे ताकि उसकी डेप्थ कम हो जाए. एनफ सिबलिंग्स है. वी डिलीट 22 कर दिया. डिमोट की एंड प्रमोट द लीफ की. हमने 29 को नीचे ले गए, 31 को ऊपर ले आए. नीचे बैलेंस हो गया. तो अगर हम इसका एनालिसिस करें ऑफ द बी ट्रीज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर m एंड हाइट h. तो रूट पर m-1 होगा. लेवल 1 पर m इंटू m-1, लेवल 2 पे m स्क्वायर m-1, लेवल h पर mh m-1. सो द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज, अगर आप इसकी ये एडिशन कर लेंगे, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस 1 प्लस mh इंटू m-1. तो ये हम अगर इसको देखेंगे तो ये mh प्लस 1 माइनस 1 ओवर m-1 इंटू m-1 हो जाएगा. तो ये बेसिकली निकल आएगा mh प्लस 1 माइनस 1. अगर आपके वेयर ऑर्डर जो है वो 5 हो और हाइट इसकी 2 हो, तो दिस गिव्स अस 5 raised to power 3 minus 1. this will be equal to 124. आप ये देखें कि हम 2 लेवल्स के ऊपर ही 124 जो है वो स्टोर कर सकते हैं. Why we use B trees? When searching tables held on the disks, the cost of each disk transfer is high, but doesn't depend much on the amount of data transferred, especially if consecutive items are transferred. So if we use a B tree of order 101, say we can transfer each node in one disk read operation. A B tree of order 101 and height 3 can hold 101 power 4 minus 1 items, approximately 100 millions. And any item can be accessed with 3 disk reads, assuming we hold the root in memory. तो if we take m, अगर हम m का जो ऑर्डर है वो हम 3 कर देंगे, तो we get a 2-3 tree in which non-leaf nodes have 2 or 3 children, that is 1 or 2 keys. B trees are always balanced होते हैं क्योंकि since the leaves are all at the same level, so 2-3 trees makes a good type of balanced tree. अगर हम compare करें तो binary trees they can become unbalanced and lose their good time complexity, big O. AVL trees जो हमने अपनी देखा, they are strict binary trees that overcome the balance problem, and heap remains balanced but only prioritize, not order the keys. जो multi-way trees हैं जिसमें B trees can be M-way, they can have any odd number of children. One B tree, the 2-3 3-way भी कहते हैं B trees, they approximate a permanently balanced tree, exchanging the AVL trees balancing operations for insertion and more complex deletion operations. And this is the very last tree for this class. We have discussed a lot of trees and various types of trees, and I sincerely hope कि आपको जो है वो trees अब
काफ़ी हद तक समझ में आएगा। अभी भी 2-3 ट्रीज़ हैं और भी काफ़ी सारे ट्रीज़ थे जिनको मैं वक्त की कमी की वजह से अभी मैं टच नहीं कर सका। वो अपने शौक के लिए आप डिफरेंट बुक्स जो हमने रिकमेंडेड बुक्स भी कोर्स में दी हैं, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। यू कैन हैव अ प्रैक्टिस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने अगर देखा जाए तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री को रिविजिट किया था, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हमने, जो 5 डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज थे, एक्सप्रेशन ट्री को देखा, थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, उसके अलावा सेल्फ बैलेंसिंग के हवाले से AVL ट्रीज, रेड ब्लैक ट्रीज और स्प्लिट ट्रीज को देखा। उसमें इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा। और इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन स्पेशली हमने मार्क किया कि हाँ जो वो इम्बैलेंस होता है तो हाउ वी कैन बैलेंस द ट्री। उसके लिए स्प्लेइंग के हवाले से जिग ऑपरेशन है, जिग है, जिग ऑपरेशंस है, और रेड ब्लैक में भी रूल्स वगैरह के हवाले से हमने उसको देखा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज इनकी कंपेयर की आपस में, एंड वी फाउंड के जो है वो मोस्टली जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, दे गो टू द ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन पे काम कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने एक स्पेशल जो है वो बी ट्रीज को भी देखा, और वो जिसको हम डेटाबेसेस और फाइल ऑपरेशंस में उसको बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है, जिसमें आपकी इंडेक्सिंग का जो है वो काफ़ी रोल आ जाता है। तो आई सिंसियरली होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।